पिछले वीडियो में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के विषय में बात किया, जिसमें रिसेंटली ये न्यू कंसेप्ट ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी हैज कम इनटू इफेक्ट इन द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस. एंड पब्लिक लायबिलिटी हियर डज नॉट मीन लायबिलिटी ऑफ द स्टेट और इट्स एजेंसीज, but means liability imposed by law as opposed to the self-imposed liability as in contract. Contract में दोनों लोगों में agreements होता है. It is the tune of the directive principles of the state policy to provide social security schemes to citizens. Social security scheme to citizens के लिए है. As to the householders comprehensive insurance, the notable case in Mills versus Smith Sinclair third party. In this case the roots of the tree, एक जड़ थी पेड़ की, दूसरे के घर में नुकसान कर रही थी. उसमें एक फैसला दिया था कि भाई हाँ ये नुकसान उनका है. एंड नेचुरल ग्रोथ ऑफ द ट्री एंड इट्स नेचुरल डिजायर फॉर द वाटर कुड not be brought within the words caused by the accident. The court held that the damage to the plaintiff's house was due to the defendant's tree, and the damage arose when the withdrawal of water from clay subsoil was sufficient to bring about crumbling of the clay and start collapsing of the foundation. Further, it was held that there had been at a moment of time overstepping of the safety limit was the nuisance of the tree's roots penetrating into the plaintiff's soil and draining away the moisture necessary to keep the movement of the house from overstepping that safety limit, and therefore the damage was caused by the accident and defendant was entitled to be indemnified by the insurance. मतलब उनके पेड़ की वजह से जो जड़ें थी, जड़ में पानी सोखती हैं, सोखने की वजह से सूख रहा था तो उनको नुकसान हो रहा, उसे दिया. Liability insurance is also an example of the public liability insurance, just as the person can insure himself against the risk of the death. The liability to third parties may arise by his own conduct, using his property से own conduct से, but property के use से own conduct से, but still the risk of the liability arising out of the use of the property is not covered by an insurance of that property, and liability policies are generally expressed as providing indemnity against liability in law. Liability in law. The phrase liability is in law is invariably understood and primarily used to cover liability arising out of the negligence. Messrs. A. Swan Engineering versus Iron Traders Mutual. That term covers besides liability in tort to liability in contract. Liability in tort or liability in contract, the liability of a building contracted to third party arising out of the faulty design of the structure was held covered through there is no negligence. Faulty design था उससे. The Mills versus Smith also support this. Liability insurance commonly covers the following. और ये liability insurance cover क्या करता है, ये देखिए कि यहाँ पे ए स्वान इंजीनियरिंग वर्सेस आयर ट्रेड म्यूचुअल में उन्होंने बोला कि द टर्म कवर्ड बिसाइड्स लाइबिलिटी इन टार्ट टू लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट, द लाइबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टू थर्ड पार्टी अराइजिंग आउट ऑफ द फॉल्टी डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर वाज हेल्ड कवर्ड मतलब थ्रू दो देयर इज नो नेग्लिजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कवर है. कवर इसलिए है कि फॉल्टी डिजाइन कर दिया. इन मिल्स वर्सेस स्मिथ also support this view. Liability insurance commonly cover the following: liability arising in connection with the professional indemnity insurance, liability arising in connection with the professional indemnity insurance, compulsory insurance, कंपल्सरी जो इंश्योरेंस होते हैं उनमें एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस, गारंटी इंश्योरेंस एंड फिडेलिटी इंश्योरेंस. अब प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस पे आते हैं. इसको भी समझने वाली बात है, काफ़ी गहराई से समझा जाना चाहिए. प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइड क्लास ऑफ द लाइबिलिटी इंश्योरेंस. ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस का ये एक वो है, मतलब एक तरह से पार्ट है, क्लास है. दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस गिव्स कवर टू प्रोफेशनल पीपल फॉर एनी नेग्लिजेंस इन द कोर्स ऑफ दियर प्रोफेशन. अपने प्रोफेशन के करने के बीच में कोई भी नेग्लिजेंस किए हैं उसको ये कवर करती है. दिस इज जस्ट रिसेंट इन ओरिजिन एंड गेनिंग ग्राउंड.
और ये ओरिजिन में अभी आया है और गेन कर रहा है, ग्राउंड गेन कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। जैसे प्रोफेशनल इंडेमनिटी में डॉक्टर्स का है, डायरेक्टर्स का है, सीएज का है, इंजीनियर्स का है, सर्वेयर्स का भी हो सकता है। This covers the loss arising out of the loss of the professional negligence such as the bankers, solicitors, lawyers का है, solicitors का है, stock brokers का है, and professional जो भी हैं उनका है. This type of insurance gained strength and developed in view of the decision of the House of the Lord in leading cases of the Hedley Berner and Company versus Heller and Partner. It was held that in some circumstances कुछ ऐसे जो भी circumstances होते हैं, the duty of care could be owed by those professionals. किसी भी जो भी प्रोफेशनल काम कर रहा है उसको ड्यूटी होती है, वो अपनी ड्यूटी को वो करे, अदा करे. who made statement that are intended to be relied upon, और उस पर रिलाई करे कि उस तरह का स्टेटमेंट दे. To those who in fact relied upon such statement and suffered loss thereby, till the accepted position of the law was that professional people. मतलब अगर आपने कुछ चीज़ ही बोला है, कोई सजेशन दिया है, सलाह दिया है, तो वो उस पर आपको स्टैंड करना है. दूसरा, अगर उसको उसका फॉलो करने के बाद उसे लॉस हो गया तो वो आप पे क्लेम कर देगा. पहला, ओड बाई ए ड्यूटी ऑफ केयर ओनली टू दियर क्लाइंट्स. अपने क्लाइंट्स के लिए अपनी ड्यूटी को अदा किया है और वो तभी बोला है. टू दोज विथ होम दे हैड ए फिड्यूशियरी रिलेशन, जिसके साथ उसका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है. दिस इज द न्यू ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ एक्सटेंडिंग लाइबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल पीपल की जो लाइबिलिटी है उसको. इन यम बीरप्पा वर्सेस इवलिन, the Supreme Court, हमारा Supreme Court had occasion to explain such liability through the matter did not it directly arise in this case, to clarify some of the rights and liabilities of the legal practitioner as compared to that of the barristers in England. Speaking about Indian advocate, the court observed, barristers वहाँ पे अपने यहाँ जो advocates हैं, no legal practitioner who has acted or agreed to act. No legal practitioner who has acted or agreed to act shall merely by reason of his status as a legal practitioner be exempt from liability to be sued in respect of any loss or injury to any negligence in the conduct of the professional duties. Means no legal practitioner who has acted, जिसने काम किया और agreed to act, काम करने के लिए एग्री किया, सेल मेरली बाय रीजन ऑफ हिज स्टेटस, जैसे लीगल प्रैक्टिशनर के स्टेटस होने पे ही वो एग्जेम्प्टेड नहीं है लाइबिलिटी से. टू बी स्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस और इंजुरी, वो उसके खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता है. नेग्लिजेंस इन द कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी ने किया है तो उसके कंडक्ट पर मुकदमा किया जा सकता है. इन इंग्लैंड लॉयर्स आर प्रोवाइडिंग कवर टू सच लाइबिलिटी. नाउ इन इंडिया such cover of liability is gaining ground. The most prevalent form of the professional indemnity insurance is the field of the medical negligence. Medical negligence में लोग करवा रहे हैं पॉलिसी. The consumer cases against the doctors are on the increase. Consumer cases डॉक्टरों के केस में आगे बढ़ रहे हैं. The large ज़्यादा हो रहे हैं. The large number of compensation मांगे गए हैं. As a result of which the indemnity insurance has taken deep root. और अब इसका जो है ना रूट बढ़ रहा है, जड़ बढ़ रही है. कंपलसरी इंश्योरेंस है. कंपलसरी इंश्योरेंस क्या होता है? बोथ इन इंग्लैंड और इंडिया. इंडिया तो फॉलो करता है इंग्लैंड का. बोथ इन इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, सो मेनी सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन हैज बीन पास्ड. वन ऑफ देम इज मेकिंग इट कंपलसरी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वर्कमैन, such as the National Insurance and the National Insurance Injuries Act 1965, Employers Liability Compensation Insurance Act 1969, and in India Employee State Insurance ESIC 1948. The English Insurance Act 1958 defines employers liability insurance business under section 33(1) as. कैसे उसका उनका क्या भाव है, बोलिए, समझने की कोशिश करते हैं. The issue of are the undertaking of liability to pay compensation or damage to workmen to their employment, but does not include any business carried
on as incidental only to marine, aviation and transit insurance business. In England, employers are required with certain exceptions to insure with an authorized insurer and insurers their liability for the personal injuries sustained by the employees arising out from their employment. वहाँ इंग्लैंड में, बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया, वेलफेयर स्कीम में जो है ना, हमारे यहाँ ESIC है, कई और स्कीमें आ रही हैं ऐसे इंग्लैंड में भी हैं, तो वो इसी बात को लेकर के बनाई गई थी. तो इट इज़ वेरी पर्टिनेंट टू नोट दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए वॉलेंटरी एक्ट ऑफ द पार्टीज. वॉलेंटरी एक्ट खुद का उनका वॉलेंटरी एक्ट है, पार्टीज है. लॉ कैन नॉट कंपेल इंश्योरेंस कंपनी टू कवर ए रिस्क विच दे अदरवाइज वर नॉट रेडी टू डू. और लॉ किसी को कंपेल नहीं कर सकता है बीमा करने से, अगर वो करना चाहता है तभी करेगा. लॉ कैन कंपेल एम्प्लॉयर टू इंश्योर ऑल द वर्कर्स. ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर को कह सकता है कि आप अपने सारे वर्कर को कवर कीजिए. अब सच कंपल्सन कैन नॉट बी अपॉन द इंश्योरर. या और ये कंपल्सन किसी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं हो सकता है. इट इज़ वॉलंटरी डिसीजन ऑफ द कंपनी टू एक्सेप्ट रिस्क. और ऐसे रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए उसका खुद का डिसीजन कंपनी का होता है. अगर वो लोग अपने हिसाब से, अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट बोलता है तभी करेंगे. इसीलिए अंडरराइटिंग सेक्शन है और बाकायदा क्लियर होने पे ही वो बीमा करते हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉट ए केस वेयर बाई not granting the policy or not extending the policy, any right or fundamental right of the petitioner is affected in any manner. किसी भी तरह से affect नहीं. In India, it is also compulsion on the part of the employers to insure for injuries sustained by the employees arising during the course of the employment. जैसे किसी भी एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई भी आदमी है, वर्कर है, काम कर रहा है, उसके दौरान में कुछ भी उसको भी इंजरी होती है, उसके लिए उसको कवरेज लेना बहुत मैंडेटरी है, ज़रूरी है. तो इसलिए उसको तो कानून फोर्स कर सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को नहीं फोर्स कर सकता है. और इसी वजह से वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वगैरह सब बने हैं और वो स्कीमें भी हैं. वर्कमैन कंपनसेशन का इंश्योरेंस होता है. सेक्शन 41C ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 प्रोवाइड्स फॉर द इंजुरी नॉट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 इफ देयर इज एनी एविडेंस रिगार्डिंग परमानेंट डिसेबलमेंट आइदर टोटल और पार्शियल. परमानेंट डिसेबलमेंट का मतलब पूरी तरह से, एंड आइदर टोटल और पार्शियल, टोटल है या पार्शियल है. परमानेंट का मतलब एक हाथ कट जाना, एक पैर कट जाना, या एक हाथ कट जाना, या एक आंख चली जाना, ये तो परमानेंट ही हो गया ना, एकदम से परमानेंट चले गए. तो अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स. तो लॉस ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी ड्यू टू द इंजरी, जो उसकी वजह से उसकी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो उस वर्कर को इंजरी, द एप्लीकेंट वर्कमैन हैज इंटाइटल कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स कंसर्न. जो भी एम्प्लॉयर है जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है उसको देना पड़ेगा. वो ESI से वो कवरेज इसीलिए लेता है, वो उनसे भी आता है प्रीमियम. एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये एक तो ESIC है, एक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है ये, और इमरजेंसी रिस्क फैक्ट्रीज इंश्योरेंस एक्ट 1962 एक और अलग से भी है. Section 2(1) of the Act defines property insurable under the Act. Under Section 17(1)(d) makes it clear that the distribution and transmission lines of the State Electricity Board fall within the concept of the factory. जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो खंबे वम्बे सब जगह पहुंचाए जाते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोगों को उनको भी फैक्ट्री ही माना है और है भी. देन दी पर्सन इंटाइटल्ड एंड अदर, उनको भी वर्कमैन कंपनसेशन में रख दिया है. इन केस ऑफ ए मोटर एक्सीडेंट इफ द विक्टिम हैज रिसीव्ड कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन ही कैन नॉट मेक फर्दर क्लेम. ट्रिब्यूनल में MB एक्ट में नहीं ले पाएगा. वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से लिया है तो MB में नहीं ले पाएगा. MB एक्ट में मीन्स जो MACT में जाता है. Where an employee driver dies in an accident, his legal heirs can opt either to claim under the workman, या तो वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में ले या तो जो है ना इसमें ले, MB एक्ट में ले. दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू क्लेम ओनली अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन. वो उसमें उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उसी में ले, एक में वर्कमैन कंपनसेशन में ले. एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस, एक एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी क्या है, वो भी अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं. लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एक्सटेंड्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द वाइकेरियस लाइबिलिटी. वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब है कि प्रिंसिपल और एजेंट,
It is well established principle of law under tort. It has also been extended in criminal law with limitation. Some differences like common employment principles and voluntary non-fit injuria were recognized. Voluntary non-fit injuria were recognized, but in modern scenario, due to the development of the labor and industrial welfare measures and legislation, the liability of the employers have been widened, and keeping in view this, employers are taking recourse of the insurance to minimize their liability. State has also enacted the Employees State Insurance Act 1948. Employees State Insurance, उसमें दोनों को प्रीमियम लेते हैं, दोनों से लेते हैं, दोनों को पैसा आ जाता है। तो ये है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया वर रिकॉग्नाइज, ये इसमें किए गए थे। बट इन मॉडर्न सिनेरियो ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द लेबर एंड इंडस्ट्रियल वेलफेयर मेजर्स एंड लेजिस्लेशन, द लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स हैव बीन वाइडेंड, उनकी बढ़ गई है। गारंटी इंश्योरेंस, अब गारंटी एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी था, गारंटी इंश्योरेंस। गारंटी इंश्योरेंस इज रिसेंट इन ओरिजिन एंड इज रैपिडली कमिंग इनटू प्रैक्टिस by it. Mercantile community may be able to multiply business activities manifold because it will facilitate credit transaction in business. In this way, guarantee business insurance companies will assume great importance in modern time, आज के युग में पाएंगी। Though guarantee business is already working in society and governed by the principles of the Contract Act, under which a friend or relative of a principal debtor, section 126 of Indian Contract Act, used to stand as a surety for due performance of the promise and discharge of the loan in cases where principal debtor makes default, जहाँ पे गारंटी दी जाती है अगर वो प्रिंसिपल जो डेप्टर है वो डिफॉल्ट करता है तो गारंटर से वसूल किया जाता है। नाउ वी सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गारंटी, नेमली, और उसका भी इंश्योरेंस होने लग गया है। ये है द इंश्योरेंस कंपनी आर अंडर राइटर्स में स्टैंड एज ए गारंटी लाइक इंडिविजुअल्स के लिए होते। द इंश्योरेंस कंपनी आर अंडर राइटर्स इंश्योर्स द प्रॉमिसेस क्रेडिटर्स आर एम्प्लॉयर अगेंस्ट द लॉस अराइजिंग बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन और द डिसऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज। The first type of contract are simple contract of guarantee which have nothing to do with the law of insurance. Insurance उसका कोई लेना देना नहीं है। It is only the latter type of arrangement which deal with the law of the insurance. दूसरे वाला means the insurance company or underwriter insure the promised creditor and employer against the loss arising or non-performance of the obligation. जो उसने गारंटी ली थी नहीं कर पाया तो उसका पैसा उसको इंश्योरेंस कंपनी को देना है, उसका वो प्रीमियम लेते हैं। The insurance part, it is only the latter type of the arrangement which deal with the law of the insurance. The main policies included in the guarantee insurance are क्या है? इंश्योरेंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस करने के लिए, इंश्योरेंस ऑफ डेप्ट कर्जे के लिए, इंश्योरेंस ऑफ फिडेलिटी ईमानदारी के लिए, ओथ के लिए, फिडेलिटी के लिए संबंध। एंड दीज स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी coupled with the insurance based on the principle of the indemnity. They involve a contract whereby the insurer undertakes to indemnify the insured from the loss caused as a result of breach of the contract or infidelity. अगर कहीं पे लॉस हो रहा है, काज हो रही है और किसी भी तरह से उसको इनफिडेलिटी हो रही है तो उसमें ये इंश्योरेंस कंपनी खड़ी देगी, भरपाई करेगी। इंश्योरेंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इंश्योरेंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए भी इंश्योरेंस होता है। In such cases, the surety undertakes the very performance of the contract where principal debtor fails to perform. अगर principal debtor ने नहीं दिया तो जो गारंटर है वो देता है। Insure the performance of the contract, अपने performance of contract को insure कर लेता है। These are generally taken in cases of contract of employment, उसमें लेते हैं। Insurance of the debt. In such cases, the promisor insurer इंश्योर्स द रिपेमेंट ऑफ द डेप्ट ऑन डिफॉल्ट बाय डेप्टर ने अगर डिफॉल्ट किया तो इंश्योरेंस कंपनी देती है, जैसा मकानों में लोग करा लेते हैं और फाइनेंशियल लोग कराते हैं। इंश्योरेंस ऑफ फिडेलिटी,
द फिडेलिटी कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन इन केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। हियर द प्रोमिजर अंडरटेक्स द ऑनेस्टी एंड कंडक्ट ऑफ ए पर्सन टू बी एम्प्लॉयड। फिडेलिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई फॉर कंसिडरेशन वन एग्रीज टू इंडेमनीफाई अनदर अगेंस्ट लॉस एराइजिंग फ्रॉम द वांट ऑफ ऑनेस्टी। अगर अनऑनेस्टी फिडेलिटी बेईमानी से उसमें कहीं कुछ हो जाता है तो एम्प्लॉई उसका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस किया जाता है। एम्प्लॉई आर अदर पर्सन होल्डिंग ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, जहाँ पे ट्रस्ट की जिम्मेदारी उसके पास है, यूजुअली द एश्योर्ड and the person whose fidelity is assured stand to each other in relation of the employer and employee. As the use of the word fidelity indicate, it is the policy intended to protect the assured against the contingency of breach of fidelity. जहाँ पे breach of fidelity होती है, मतलब जिससे ऑनेस्टी की उम्मीद की जा सकती है, फिडेलिटी की उम्मीद की जा सकती है, उससे ऐसा नहीं होने की उम्मीद की जा सकती, वहीं पे इंश्योरेंस ले लेते हैं तो वो उसमें इंश्योरेंस का पेमेंट होता है। बर्गलरी एंड थेफ्ट इंश्योरेंस, ये इसको अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्ते, प्रणाम। आशा है कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।